Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today I will explain you the fourth chapter of class 7th. This chapter name is A Pit Full of Snakes. मतलब एक गड्ढा किससे? सांपों से भरा हुआ. Let's start the story. On my way out to West Bengal for the second time, दूसरी बार वेस्ट बंगाल पर जाते समय मेरे रास्ते में I meet on board the ship. मैं किससे मिला? बोर्ड शिप के बोर्ड से a young Irishman named McToodle, who was going out to a job on a banana plantation in the कैमेरोन्स. जो एक क्या था, ऋषि थे जिनका नाम था मैकडूडल, जो जा रहे थे अपनी जॉब पर बनाना प्लांटेशन की. कहां पर? कैमरून्स में. He was quite convinced that Africa was the most dangerous place. वो quite convinced थे कि अफ्रीका सबसे dangerous place है unimaginable, जिसको imagine नहीं किया जा सकता. His chief fear seemed to be that the entire snake population of the continent was going to be assembled on the docks to meet him. वो उनका जो fear था वो इसलिए डरे हुए थे कि entire snakes pollution है, सांपों की जो सारी pollution है वो उस continent की उनसे मिलेगी, मतलब जो वहां पहुंचेंगे. In order to relieve his mind, I told him that in all the months I had spent in the forest, I had seen precisely 5 snakes, and these had run away so fast that I have been unable to capture them. उनको in order to relieve his mind, उनके माइंड को रिलीव करने के लिए मैंने उनको बताया कि जितने मंथ से मैं रह रहा हूँ, मैंने फॉरेस्ट में जो स्पेंड किए हैं, मैंने सिर्फ 5 स्नेक्स देखे हैं, और वो भी जब मुझे दिखे तो इतना तेजी से भाग गए कि मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाया. He asked me if it was dangerous job to catch a snake. And I replied quite truthfully that the majority of snakes were extremely easy to capture if you keep your head and know your snake and its habit. मैंने उनसे पूछा, उसने मुझसे पूछा कि क्या ये डेंजरस जॉब है स्नेक्स को पकड़ने की, तो मैंने रिप्लाई किया कि हाँ, नहीं, क्वाइट ट्रूथफुली ये एक सच नहीं है. दैट द मेजॉरिटी ऑफ स्नेक्स, मतलब अगर डेंजरस जॉब वर एक्सट्रीमली इजी टू कैप्चर, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ स्नेक्स है बहुत इजी है कैप्चर करने के लिए अगर आपका माइंड बना हुआ है और आप स्नेक्स और उनकी हैबिट्स को जानते हैं. ऑल दिस सूथ मैकडूडल कंसीडरेबल, and when he landed, he swore that before I returned to England, he would obtain some rare specimen for me. I thanked him and promptly forgot all about it. 5 months later, 5 महीने बाद, I was ready to leave for England. मैं ready था इंग्लैंड के जाने के लिए with a collection of about 200 creatures, ranging from grasshopper to chimpanzees. कि मैं कलेक्ट कर चुका था 100 क्रिएचर्स, जिसमें ग्रास हॉपर से लेके चिंपैंजीज तक थे. वेरी लेट इन द नाइट द शिप वॉज ड्यू टू सेल. देर रात में शिप क्या था? ड्यू टू सेल. अ स्मॉल वेंट ड्रू अप द screeching break outside my camp, and my young Irishman friend alight together with several friend of his. फिर क्या हुआ? उसको अपना फ्रेंड मिला, उसको जो अपना फ्रेंड थे, जो ऋषि फ्रेंड थे, वो मिले अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ. He explained that he had got me a spiceman he had promised. Apparently, he had discovered a large pit somewhere on the plantation he was working on. उन्होंने डिस्कवर किया एक लार्ज पिट, मतलब एक लार्ज गड्ढा, जहां पर वो प्लांटेशन करने के लिए गए थे, जहां पर वो वर्क कर रहे थे. which has presumably been dug off as a draining sump. This pit, he said, was full of snake and they were all mine. वो गड्ढा क्या था? पूरा स्नेक से भरा हुआ था और वो सारे मेरे थे. Providing I went and got them. मुझे वहां जाना और उनको पकड़ना लेना था. He was so delighted at the thought of all these specimens he had found for me that I had not the heart to point out the crawling about in a pit full of snake at 12 o'clock. मतलब मेरा जो हर्ट था वो बिल्कुल क्या था? उस पिट में जाने का क्या था कि मैं बहुत डरा हुआ था कि फुल ऑफ स्नेक्स के पिट में जाऊंगा रात के 12 बजे एट नाइट. वॉज नॉट माई आइडिया ऑफ अ प्लेजरेबल ऑक्यूपेशन.
Furthermore, he had obviously been boasting about my power of his friend. और वो क्या कर चुके थे कि अपने फ्रेंड्स को भी मेरी पावर के बारे में बता चुके थे. And he had brought them all along to see my snake catching method. और वो भी उनके साथ आए थे, वो देखना चाहते थे कि मैं कैसे सांप पकड़ता हूँ. So with considerable reluctance, I said I would go and catch the reptiles. तो मैंने कंसिडर किया कि मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और मैं रेप्टाइल्स को पकड़ूंगा. आई हैव रियरली रिग्रेटेड अ डिसीजन मोर. आई कलेक्टेड अ लार्ज कैनवास स्नेक बैग. मैंने लिया हुआ था अपने के साथ एक बड़ा कैनवास स्नेक बैग और एक स्टिक अपने साथ जिसमें वाई शेप का फॉक ऑफ ब्रास था एक एंड पर. देन आई स्क्वीज्ड इनटू द वैन विद माय एक्साइटेड ऑडियंस एंड वी ड्रोव ऑफ. फिर मैं अपने वैन में बैठा अपनी एक्साइटेड ऑडियंस के साथ और हम वहां से चले गए. एट हाफ पास्ट 12 पर वी रीच्ड माय फ्रेंड्स बंगलो एंड स्टॉप्ड देयर फॉर अ ड्रिंक बिफोर वॉकिंग थ्रू द प्लांटेशन टू द पिट. कि हम अपने फ्रेंड के एक बंगले पर रुके और वहां पर कुछ पीने के लिए रुके. उसके बाद हम पिट पर गए जहां प्लांटेशन थी. इवेंचुअली 8 of us wended our way though the banana plantation and 7 of us were laughing and chattering excitedly at the thought of the treat in store. हम में से 8 अपने रास्ते पर चले गए जहां बनाना प्लांटेशन का अपने रास्ते पर, और हम में से 7 हंस रहे थे और बातें कर रहे थे thought of the treat in the show. It suddenly occurred to me that I was wearing the most inadequate clothes for snake hunting. मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो स्नेक पकड़ने के लिए ठीक नहीं है. थिन ट्रॉपिकल ट्राउजर, एक थिन पतला सा ट्राउजर है, एंड अ पेयर ऑफ प्लिम्जल शूज. और शूज भी कैसे हैं, बहुत ही हल्के हैं. इवन द स्मॉलेस्ट रेप्टाइल वुड हैव नो डिफिकल्टी इन पेनिट्रेटिंग टू माय स्किन विद वन बाइट. मतलब एक छोटे से रेप्टाइल को भी बहुत मुश्किल नहीं होगी मेरे स्किन से मेरे कपड़ों के अंदर से बाइट लेने में. However, before I could explain this, मैं जब ये एक्सप्लेन कर पाता, we arrived at the edge of the pit. हम पिट के किनारे पहुंच चुके थे, हम गड्ढे के पास पहुंच चुके थे. My friend's description of it had been accurate enough, but what he had failed to tell me was that the side of the pit consisted of dry crumbling earth honeycombed with cracked and holes that offered plenty of hiding place of any number of snakes. मेरा फ्रेंड मुझे फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इट हैज बीन, मेरे फ्रेंड्स के डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये एक्यूरेट था इनफ बताने के लिए कि व्हाट ही हैड फेल्ड टू टेल मी, कि वो मुझे फेल हो गया है बताने में कि जो गड्ढे के साइड का जो एरिया है वो क्या है, वो ड्राई है, क्रम्पिंग अर्थ है और हनी कॉम्ड है विद क्रेक्ड. उसमें बहुत सारे होल हैं जो बहुत सारा स्पेस देते हैं स्नेक्स को छुपने के लिए. While I crouched down on the edge of the pit, the lamb was solemnly lowered into the depth so that I might spy out the land and try to identify the snakes. मैं जैसे ही मतलब मैं थोड़ा आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि उस लैंड को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए स्नेक्स को. अप टू दैट मूवमेंट, उसी मूवमेंट पर आई हैव चीयर्ड माई सेल्फ विद द थॉट ऑफ दैट आफ्टर ऑल द स्नेक्स माइट turn out to be a harmless variety, but when the light reached the bottom, तब मुझे लगा कि क्या है, हार्मलेस वैरायटी है. लेकिन जब लाइट बॉटम तक पहुंची, this hope was steadied. Therefore I saw that up it was simply crawled with young garboon vipers, one of the most deadly snake in the world. उसने सोचा कि बिना हार्म पहुंचाने वाली वैरायटी होगी स्नेक्स की, लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर गैबलून वाइपर्स थे जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेडली स्नेक्स थे, सबसे ज्यादा खतरनाक. ड्यूरिंग द डे टाइम दीज स्नेक्स आर वेरी स्लगिश एंड इट इज क्वाइट अ सिंपल जॉब टू कैप्चर देम. दिन के टाइम में ये स्नेक बहुत ही लेजी होते हैं और ये बहुत सिंपल जॉब होती है उनको पकड़ना. बट एट नाइट व्हेन दे वेक अप एंड हंट फॉर देयर फूड दे कैन बी अनप्लीजेंटली क्विक. लेकिन रात में जब वो जागते हैं और वो खाने के लिए तलाश करते हैं, वो बहुत ही तेज हो जाते हैं. These young ones in the pit were about 2 feet long and a couple of inch in diameter, and they were all, as far as I could judge, very much awake.
जो यंग वॉल्स थे जो पिट में, वो कितने थे, 2 फीट लॉन्ग थे और कपल ऑफ इंच डायमीटर था उनका। और वो जैसा कि मैंने उन्हें जज किया था, वो सारे बहुत ही जागे हुए थे। दे विल्ड अराउंड एंड राउंड द पिट विद ग्रेट रैपिडली, वो तेजी से पूरे पिट में इधर उधर दौड़ रहे थे। एंड केप्ट लिफ्टिंग देयर हैवी एरो शेप्ड हेड एंड लुकिंग एट द लैंप, और अपनी जीभ को अंदर बाहर कर रहे थे और लैंप की तरफ देख रहे थे। फ्लिकिंग देयर टो आउट एंड इन, अपनी टो को अंदर बाहर करके। I count 8 gaboons viper in the pit. मैंने 8 gaboons viper को काउंट किया था, but their coloration matched the leaf mound so beautifully that if I could not be sure, I was counting some of them twice. लेकिन उनका कलर इतना मैच कर रहा था लीफ माउंड से कि मैं श्योर नहीं था, मुझे उनको 2 बार काउंट करना पड़ा। Just at that moment, my friend trod heavily on the edge of the pit and a large lumps of earth falling among the reptile. जैसे ही मेरा फ्रेंड आगे बढ़ा तो एक छोटा सा मिट्टी का टीला, मतलब मिट्टी का जो पार्ट था, वो उस पिट में गिर गया। और जो सारे रेप्टाइल थे, who all looked up and hissed loudly, सारे रेप्टाइल थे ऊपर देखने लगे और hissed तेजी से आवाज निकालने लगे। Everybody back away hastily, सारे लोग पीछे हट गए। And I thought it was a very suitable opportunity to explain the point about my clothing. तो मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लेन करने के लिए मेरे कपड़ों के बारे में। My friend with the typical Irish generously offered to lend me his trouser with one ऑफ स्टॉट ट्विल, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे ऑफर कर दिया अपना ट्राउजर एंड द स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ शू ही वाज वेयरिंग, और स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ शूज जो उसने पहने हुए थे। नाउ द लास्ट ऑफ माय एक्सक्यूज वाज गॉन, अब लास्ट एक्सक्यूज भी मेरा जा चुका था। एंड आई हैड नॉट द nerve to protest further, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। We went behind a bush and exchanged trouser and shoe, हम अब झाड़ियों के पीछे गए, हमने ट्राउजर शूज को एक्सचेंज किया। My friend was built on more generous lines than I, and the clothes were not exactly a good fit, अब कपड़े भी इतने फिट नहीं थे जितने होने चाहिए थे। However, as he rightly pointed out, the bit of trouser leg I had to turn up at the bottom would act as additional protection for my ankle. Dearly I approached the pit, मैंने dearly approach किया पिट में। My audience was clustered round, ट्विंटरिंग इन डिलीशियस एंटीसिपेशन, अब जो ऑडियंस थी वो चारों तरफ राउंड लगा रही थी देखने के लिए। आई टाइड द रोप राउंड माई वेस्ट विद व्हाट आई वेरी सून डिस्कवर टू बी अ स्लिप नॉट एंड क्रोल्ड टू द एज, मैंने एक टाई की रोप अपने वेस्ट के चारों तरफ, और आई वेरी सून डिस्कवर, अब मैं जल्दी ही डिस्कवर करने वाला था, एंड क्रोल टू द एज, और एज तक जाने लगा। My descent had not got in the airy grave of a pantomime fairy. The side of the pit were so clumsy that every time I tried to gain a foothold, I dislodged large quantity of earth. जो वहां की मिट्टी थी वो इतनी लूज थी कि जैसे ही मैं अपना पैर टिकाने के लिए रख रहा था कि एक बड़ी क्वांटिटी में अर्थ क्या होती थी, लूज हो जाती थी। As this fell among the snakes, और जैसे ही वो स्नेक्स पर गिरती, it was greeted with peevish hisses, और वो hisses की आवाज निकालने लगते थे, उनको ग्रीट कर देता था। I had to dangle in mid air, मैं मिड एयर में डेंगल था। being gently lowered by my companion, जो मुझे नीचे से जो मेरे कैंपियन मुझे नीचे कर रहे थे। while this slip not grasp me very tight round the waist, eventually I looked down, जैसे मैंने नीचे देखा, and I saw that my feet were about a yard from the ground, मैंने देखा कि मेरे फीट सिर्फ एक गज ही ऊपर है ग्राउंड से। I shouted to my friend to stop lowering me, मैंने चिल्लाया अपने फ्रेंड्स पे कि मुझे नीचे ना करो। as I wanted to examine the ground, जैसे कि मैं एग्जामाइन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ग्राउंड को। I was to land on and to make sure that there was no snake lying there, मैं लैंड देखना चाहता हूँ और श्योर होना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई स्नेक तो नहीं है। आफ्टर अ केयरफुल इंस्पेक्शन आई कुड नॉट सी एनी रेप्टाइल डायरेक्टली अंडर मी, एक केयरफुल इंस्पेक्शन के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर कोई रेप्टाइल नहीं है मेरे नीचे। सो आई शाउटेड लोअर अवे, तो मैं चिल्लाया कि नीचे कर दो। इन व्हाट आई सिंसियरली होप्ड वाज एन इंटरप्रेट टोन ऑफ वॉइस, तो जैसा कि मैं सोच रहा था
इतनी तेज आवाज में कि एक जो साहस की आवाज लगी। एज आई स्टार्टेड ऑन माई डिसेंट अगेन, जैसे ही मैं नीचे आने लगा, टू थिंग्स हैपेंड एट वंस, दो चीज एक साथ हुई। फर्स्टली वन ऑफ माई बोरोड शूज फेल ऑफ, पहले एक मेरा उधार लिए गए शूज में से एक नीचे गिर गया। एंड सेकेंडली द लैंप विच नन ऑफ अस हैज रिमेंबर टू पंप अप, जो लैंप थी जिसको हम भूल गए थे पंप अप करना, डाइड अवे टू अ फेंट ग्लो ऑफ लाइट, जो बुझ चुकी थी। रेदर लाइक अ प्लम्प सिगार एंड, जैसे एक सिगार एंड होता है। एट दैट प्रिसाइज मूवमेंट, उसी मूवमेंट पर आई टच द ग्राउंड विद माई बेयर फुट, मैंने ग्राउंड को टच किया अपने नंगे पैरों से। आई कैन नॉट रिमेंबर इवन हैविंग बीन सो फ्रिटेंड बिफोर और सिंस, मुझे याद भी नहीं था कि मैं इतना भयभीत कब था, इतना डरा हुआ कब था। आई स्टूड मोशनलेस स्वेयरिंग विद ग्रेट फ्रीडम, मैं खड़ा रहा मोशनलेस और फ्रीडम के साथ। while the lamp was hastily hauled up to the surface, pumped up and lowered down again, जब उस लैंप को ऊपर ले जाया गया, पंप किया गया और उसको फिर से नीचे किया गया। I have never been so glad to see a humble pressure lamp now that the pit was once more flooded with lamplight, अब वो पिट पूरा भर चुका था रोशनी से। I began to feel a little braver, अब मुझे और थोड़ा साहसी लग रहा था। I retrieved my shoes and मैंने वो अपना शूज उठाया and put it on, और फिर से पहन लिया। And this made me feel even better, और जिससे मुझे और बेटर फील हुआ। I grasped my stick in a moist hand and approached the nearest snake, मैंने अपने स्टिक उठाई गीले हाथों से और अपने नियरेस्ट स्नेक को पकड़ा। I pinned it to the ground with the forked end of the stick, pick it up and put it in the bag, मैंने पिन की अपनी जो स्टिक थी, फॉर्क्ड स्टिक, उसके एंड को स्नेक पर लगाया और उसको एक स्नेक को पिक किया और अपने बैग में रख लिया। दिस पार्ट ऑफ द प्रोसीजर गेव मी अ काम, इस प्रोसेस को करना मुझे क्या मिली, मुझे अच्छा लगा। फॉर इट वॉज सिंपल इनफ, क्योंकि ये बहुत सिंपल थी। एंड नॉट डेंजरस प्रोवाइडेड यू एक्सरसाइज अ सर्टेन केयर। द आइडिया इज टू पिन द रेप्टाइल अक्रॉस द हेड विद द फॉर्क एंड देन गेट अ गुड फर्म ग्रिप ऑन इट्स नेक बिफोर पिकिंग इट अप। जो आइडिया था कि रेप्टाइल को पिन करना उसके हेड से, जो वो वाई शेप जो उस पे हुक लगा हुआ था, उससे फिर उसकी नेक को पकड़ के उसको पकड़ना। What worried me was the fact that while my attention was occupied with one snake, जब मेरी attention एक snake के साथ थी, all other snake were wriggled around frantically, सारे जो snakes थे वो मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। And I had to keep a continuous eye open in case one got behind me and I stepped back on it, मुझे continuous eyes रखनी थी अपनी open की कोई मेरे पीछे ना आ जाए और मुझे पीछे से वार ना कर दे। They were beautifully marked with an intricate pattern of brown, silver, pink and cream blotches, and when they remained still, this coloration made them extremely hard to see. They just melt into the background. जो उनके कलर थे वो ब्यूटीफुली मार्क्ड थे पैटर्न से, ब्राउन, सिल्वर और पिंक क्रीम ब्लॉचेस से। जब वो स्टिल रहते थे, बिना हिले डुले रहते थे, तो उनका जो कलर था वो एक्सट्रीमली हार्ड था देखने के लिए, वो सिर्फ बैकग्राउंड में मिल जाते थे। एज सून एज आई पिन्ड वन टू द ग्राउंड इट वुड स्टार्टेड टू हिस लाइक अ केटल, जब मैं पिन करता था ग्राउंड पर तो ये आवाज आती थी हिस, एक केटल की तरह। एंड ऑल द अदर वुड हिस इन सिंपैथी, तो सारे जो स्नेक थे वो सिंपैथी में आवाज निकालते थे। मोस्ट अनप्लीजेंट साउंड, जो बहुत ही खतरनाक आवाज थी। देयर वर वन नेस्टी मूवमेंट when I bent down to pick up one of the reptile and heard a loud hissing apparently coming from somewhere horribly close my ear. ये एक बहुत ही नेस्टी मूवमेंट था। जब मैं बेंड हुआ एक सांप को पिक करने के लिए, तो मुझे एक आवाज आई हिसिंग की, जो मेरे बिल्कुल कान के पास से आ रही थी। I straightened up and found myself staring into a pair of angry silver colored eye approximately a foot away. तो जैसे मैं सीधा खड़ा हुआ तो मैंने पाया कि एक पेयर एंग्री सिल्वर कलर्ड आई जो एक्सट्रीमली उससे एक फुट अवे दूर थी। आफ्टर
after considerable juggling I managed to get this snake down on the ground. मैं जगलिंग के बाद उनसे थोड़ा सा जगलिंग के बाद मैं मैनेज कर पाया कि उस स्नेक को ग्राउंड पर कर पाया एंड पिन हिम बिनेथ माय स्टिक, और उनको अपनी स्टिक से पिन कर पाया. ऑन द होल द रेप्टाइल वर जस्ट एज स्कैर्ड एज ऑफ मी एज आई वाज ऑफ देम. पूरे टाइम जो रेप्टाइल्स थे वो भी मुझसे उतने ही डरे हुए थे जैसा कि मैं जितना कि मैं उनसे. एंड दे डिड देयर बेस्ट टू गेट आउट ऑफ माय वे, और उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे अपने रास्ते से हटाने की. इट वाज ओनली व्हेन आई हैड cornered them that they fought and stuck viciously at the stick but bounced off the brass fork with a raising ping. However, one of them must have been more experienced. However, उनमें से एक जो था वो बहुत ही experienced था. For he ignored the brass fork, जिसने brass fork को ignore किया और उसने and bit instead through the wood, और उसने उसको छोड़कर लकड़ी को काट दिया. He got a good grip and hung on like a bulldog. He would not let go even when I lifted him clear of the ground. Eventually, I had to shake the stick really hard. मुझे स्टिक को शेक करना पड़ा hard, and the snake sailed through the air, और स्नेक को सेल किया एयर में, hit the side of the pit and fell to the ground hissing furiously. When I approaching him with the stick again, जब मैं उसको फिर से स्टिक के साथ अप्रोच करने गया, उसको पकड़ने गया, he refused to bite. उसने रिफ्यूज कर दिया काटने से उसने. And I had no difficulty in picking him up, और मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई उसको पकड़ने में. I was down in the pit for about half an hour. मैं आधे घंटे के लिए उस गड्ढे में था. And during this time I caught 12 goblin vipers, और इस टाइम में मैंने 12 goblin vipers पकड़े थे. I was not sure even then that I had captured all of them. मैं इतना श्योर नहीं था कि मतलब मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मैं उनको पकड़ लूंगा. But I felt it would be tempting fate to stay down there any longer. My companion hauled me out. मेरे जो कंपेनियन थे उन्होंने मुझे बुलाया, hot, dirty and मुझे बाहर निकाला, और जिसमें मैं क्या था, बहुत ही हॉट, गंदा और स्ट्रीमिंग विद स्वेट, और पसीनों से भरा हुआ था. क्लस्टरिंग इन वन हैंड अ बिग फुल ऑफ लाउडली हिजिंग स्नेक, और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था मैंने एक बहुत बड़ा जो स्नेक का बैग जो तेजी से आवाज कर रहा था. देयर नाउ सेड माय फ्रेंड triumphantly while I was recovering my breath, I told you I would get you some specimen, did I not? मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि जब मैं अपनी जब ब्रेथ को रिकवर कर रहा था, मतलब सांसें ले रहा था, तो मैंने तुमको बोला था कि मैं कुछ स्पेसिमेन लाऊंगा. मैं लाया ना. I just nodded. उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी. बाय दिस टाइम आई वॉज बियॉन्ड स्पीच. में उस समय मैं बोलने लायक भी नहीं था. नाउ दैट द डेंजर वॉज ओवर. अब डेंजर जा चुका था, खतरा जा चुका था. ही बिगेन टू रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ एक्सट्रीमली स्टूपिड आई हैव बीन टू गो इनटू द पिट इन द फर्स्ट प्लेस. अब मुझे रियलाइज हो रहा था कि पहली बार कि ये कितना स्टूपिड था कि मैं उस गड्ढे में गया पहली बार. एंड हाउ एक्सेप्शनली लकी आई वाज टू हैव कम आउट ऑफ अलाइव. और मैं कितना लकी था कि मैं वापस जिंदा वहां से बच पाया. आई मेड अ मेंटल नोट दैट इन फ्यूचर मेंटल नोट, मैंने एक नोट किया फ्यूचर के लिए. इफ एनीवन आस्क मी इफ एनिमल कलेक्टिंग वाज अ डेंजरस ऑक्यूपेशन, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एनिमल्स को पकड़ना एक डेंजरस ऑक्यूपेशन है, आई वुड रिप्लाई दैट इट वाज ओनली एज डेंजरस एज योर ओन स्टूपिडिटी अलाउड इट टू बी. ये उतना ही डेंजरस है जितना आपकी स्टूपिडिटी उसको अलाउ करती है. व्हेन आई हैड रिकवर्ड स्लाइटली आई लुक अबाउट एंड डिस्कवर दैट वन ऑफ माय ऑडियंस वाज मिसिंग. जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैंने डिस्कवर किया, मैंने देखा कि मेरी जो ऑडियंस में था एक आदमी गायब था. वेयर इज योर ब्रदर गोन टू? तुम्हारा भाई कहाँ गया? आई आस्क्ड माय फ्रेंड. मैंने अपने फ्रेंड से पूछा. ओ हिम, अच्छा वो. सेड मैकडुडल विद फाइन स्कॉर्न. ही कुडंट वॉच एनी मोर. वो और नहीं देख सका. ही सेड इट मेड हिम फील सिक. उसको ये देखना बहुत ही सिक लग रहा था. ही इज वेटिंग ओवर देयर फॉर अस. उसने हमारे लिए बहुत वेट किया. यू विल हैव टू एक्सक्यूज हिम. He could take it sure, and it request some guts to watch you down there with all those rich reptile. इसमें भी guts चाहिए कि तुमको उन reptiles के साथ
देखने में। नाउ कम टू द वर्ड ट्रीजर। स्क्रीच्ड, स्क्रीचिंग मतलब होता है शाउटिंग, सेवरल मतलब होता है मेनी, मोर, शम्प मतलब होता है पिट ऑफ कलेक्ट लिक्विड, बूस्टिंग मतलब होता है शोइंग एक्सेसिव प्राइड, रिलक्टेंस मतलब होता है अनविलिंगनेस, showing pride about oneself, boosting मतलब होता है showing excessive pride about oneself, वेंडेड मतलब होता है वेंट अवे, प्लिमसॉल शू मतलब होता है कैनवास शू, क्रॉस्ड डाउन मतलब होता है स्टूड अप, स्टूप्ड, डियरली मतलब होता है इन एन अनहैप्पी मैनर, पेंटोमाइम मतलब होता है ड्रामा थ्रो गेस्चर, क्वेम्स मतलब होता है अनईजी फीलिंग ऑफ डाउट, ग्रिप मतलब होता है फिर्म होल्ड, ट्रियम्फेंटली मतलब होता है जॉय ऑफ विक्ट्री, स्टूपिड मतलब फुलिश, स्कॉर्न मतलब कॉन्टेम्प्ट, व्रिज्ड मतलब अनफॉर्चुनेट. Now it's time for exercise from the lesson. Take write the correct answer and compare it with your partner. The pit was full of snakes. 12:30, another reached his friend's bungalow and stopped there for drink. The pit was simply crawled with young gaboon vipers. Uh, the snake was beautifully marked with an intricate pattern of brown, silver, pink, all of them. Animals collecting occupation isn't as dangerous as your own wisdom allow it to be. Now, the next is fill in the blanks to complete sentence from the story. The author was a veterinary veterinary surgeon. I was ready to leave for England with a collection of about 200 creatures. 8 of us went our way through the banana plantation. I counted 8 gaboon vipers in the pit. After a careful inspection, I could not see any reptile directly under me. Write yes or no for the following statement. The author meet on board the ship a young Irishman. This is yes. The pit was full of young cobras. No. During the daytime, these snakes are very sluggish and it is quite a simple job to capture them. This is yes. The narration pinned the snake to the ground with a spear. No. Spear? No. The snake were very friendly to the men? No. Come to the next, match the following. I thanked him and promptly forgot all about it. I have really regretted a decision more. I was not counting some of them twice. My descent had not got the airy gave of a pantomime affair. He got a good grasp and hung on like a bulldog. Now answer the following question. Who was narrators? Where did he go for the second time? Narrator कौन था और second time वो कहाँ जा रहा था? On my way out of West Africa for the second time, I meet aboard of the ship a young Irishman named MacDoodle who was going out of a job of a banana plantation in Cameroon. The next question is, why was Doodle's clothing inadequate for catching snake? उसके कपड़े क्यों सही नहीं थे स्नेक्स को पकड़ने के लिए? He was wearing the most inadequate clothing for snake hunting, thin tropical trouser and a pair of plimsoll shoes. Even the smallest reptile would have no difficulty in penetrating to my skin with one bite. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करेंगे. Come to the next question. The next one is,
Is animal catching really dangerous? Explain the author's perspective shift. क्या एनिमल्स को पकड़ना सच में डेंजरस है? इसके पर्सपेक्टिव को बताना है, ऑथर के पर्सपेक्टिव को. If anyone asked me, author क्या कहता है, if animal collecting was a dangerous occupation, I would reply that it was only as dangerous as your own stupidity allowed to be. Come to the next question. What is a slip knot? What happened when the author was being lowered into the pit? Slip knot क्या हुआ जब वो ऑथर नीचे जा रहा था? इसका आंसर होगा it is a pit but about the long couple of a diameter and I could judge not awake. उसने इसका आंसर होगा while the slip knot grasped me very tight around the wrist. Eventually, I looked down and I saw that my feet were about a yard from the ground. I shouted to my friends to stop lowering me as I wanted to examine the ground I was to land on and to make sure there was no snakes lying there. Why do you think McDougall's brother wasn't among the spectators? He couldn't watch anymore. He said it made him feel sick. He was waiting over there for us. You will have to excuse him. He couldn't take it, sure, and it required some guts to watch you down there with all those wretched reptiles. Next is word part. Make adverbs from the given words by adding ly to them. Truthful, truthfully, easy, easily, considerable, considerably, prompt, promptly, apparent, apparently, sudden, suddenly, unpleasant, unpleasantly, heavy, heavily. Now come to the next one. Loud, loudly, direct, directly, hasty, hastily, beautiful, beautifully. Now come to the next one. Write 3 synonyms for each of the following. One has been done for you. Continental, universal, globe, worldwide. यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हमें सिनोनिम्स लिखने हैं. पेनिट्रेट मतलब होता है पर्स, परफोरेट पंच, बंगलो विला, मेंशन रेंच, डेंजरस हैजार्डियस रिस्की और थ्रेटनिंग, beneath below underneath और under. Come to the next one. Grammar tree. Transform the following sentence as directed. Mother said to me, comma inverted comma, the sun rises in the east. तो इसका हम क्या बनाएंगे? Mother told me that
the sun rises in the east. Next हमें बनाना है, our teacher says that honesty is the best policy. Direct, our teacher says, comma, inverted comma, honesty is the best policy. The author caught many snakes. इसको हमें बनाना है पैसिव में. Many snakes were caught by the author. I was not give 5 rupees by you. Active. You do not give me 5 rupees. Exclamatory. It is a very beautiful dress. How beautiful dress it is. Exclamation sign. Now come to the next one. Change the following exclamatory sentence into assertive sentence. इनको हमें assertive में change करना है. What a beautiful flower. It is a beautiful flower. What a great victory. It is a great victory. How kind of you to help him like that. It is very kind of you to help him like that. What a glorious morning. It is a glorious morning. Now change the following imperative sentence into interrogative sentence. Stop it. Will you stop it? Come to the next one. Please give me a glass of water. Will you please give me a glass of water? Come here. Will you come here? Question mark. Shut up. Will you shut up? Get out of here. Will you get out of here? Now come to the next one. Punctuate the following paragraph. इस पैराग्राफ को पंचुएट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में इसको पंचुएट करेंगे, फिर आपको उसको यहां लिखना है. ओ कैपिटल कॉमा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैकडूगल का एम कैपिटल होगा, मैकडूडल विद फाइन स्कॉर्न कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही कुडंट यहां apostrophe वॉच एनी मोर फुल स्टॉप. He का H कैपिटल he said comma inverted comma it made him feel sick full stop inverted comma close. He का H कैपिटल he is waiting over there for us full stop. U का U कैपिटल you have to excuse him full stop. He couldn't यह apostrophe take it sure and it requested some guts to watch you down there with all those wretched reptile full stop inverted comma close. Now come to the next. Your teacher will tell you about reptiles. आपकी टीचर आपको रेप्टाइल के बारे में बताएंगी. Listen to him carefully and write main point. आपको उनको केयरफुली सुनना है, यहाँ पर मेन पॉइंट लिखने हैं. Also give an example of reptile और एक एग्जाम्पल देना है रेप्टाइल का.
पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज इलीगल। तो एनिमल्स की पोचिंग करना इलीगल है, उनको पकड़ना, बट कीपिंग एनिमल्स इन कैपिटिविटी फॉर रिसर्च और अदर पर्पस इज नॉट। Make a group of 6 and discuss it if it is really human to captivate animals। आपको ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है इस बारे में क्या एनिमल्स को कैप्चर करना सही है या गलत है। थैंक यू स्टूडेंट।